what we discussed in our last part was the Poisson random variable. Poisson random variable क्या था कि जी Bernoulli trials करना, ठीक है, for a large number of times, ठीक है, for a fixed large number of times, कि जिसमें सक्सेस की यानी Bernoulli ट्रायल में हर एक में सक्सेस के जो चांसेस हों वो बहुत कम हो, ठीक है. So we discussed that, the Poisson random variable, in detail. So I would like to move now to the some more kind of interesting distributions. So the next that we would like to talk is what you call the geometric random variable. Okay. Now, what is the geometric random variable? फर्ज करें कि you want to apply for some scholarship, ठीक है, आप किसी scholarship के लिए apply करना चाहते हैं और इस scholarship और you are determined कि आपको वो particular scholarship ज़रूर चाहिए होगी और उस particular scholarship के लिए you know GRE international का एग्ज़ाम या GAT का एग्ज़ाम is necessary, ठीक है. कुछ अर्सा पहले तक अगर आपको हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपको PhD का एग्ज़ाम PhD की डिग्री चाहिए तो आपको GAT सब्जेक्ट का फाइनल एग्ज़ाम जो है आपको देना पड़ता है. सो इमेजिन दैट यू वांट टू टेक अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम, ठीक है, like GRE International, GAT, or any exam that you like actually, ठीक है, and you want to, और अब उस एग्जाम में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, you know, either you can pass that exam or fail that exam. So दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप पास करेंगे वो एग्जाम या फेस करेंगे वो एग्जाम. But you know, to get that scholarship, to get that funding, or to get your, for example, PhD degree according to as per HEC criteria, you need to give this exam like GAT subject or GRE International until and unless you pass it. In other words, you have to keep on performing the Bernoulli trials until you get a success actually. ठीक है, you know, एक और मिसाल क्या हो सकती है कि जी आप कि जी कॉइन फ्लिप करते रहें, ठीक है, कॉइन फ्लिप करते रहें तब तक कि जब तक हेड ना आए. हो सकता है कि हेड पहली अटैम्प्ट पर आ जाए, हो सकता है कि हेड पहली अटैम्प्ट पर नहीं मगर दूसरी अटैम्प्ट पर आए या तीसरी अटैम्प्ट पर आए. यानी आप तब तक करते रहेंगे जब तक जो हेड है वो किसी न किसी अटैम्प्ट पर आ जाए, यानी until you get one success. और एक इस चीज़ को मॉडल, so this situation can model a very interesting variety of kind of variety of situations actually, ठीक है. For example, if you are looking for say a particular person, a particular kind of a person, ठीक है, for example आप एक employer हैं और आप एक आपको एक particular किस्म के skills वाला बंदा चाहिए, ठीक है. So what you will do? You will keep on advertising the job, you will keep on interviewing the people, ठीक है, आप लोगों को interview करते रहेंगे तब तक कि जब तक आपको आपके required skills वाला बंदा नहीं मिल जाता. तो आप जितने भी बंदों को इंटरव्यू कर रहे हैं तो हर बंदा इज लाइक अ बर्नौली ट्रायल कि जिसमें आपके रिक्वायर्ड स्किल्स या तो होंगे, यानी एम्प्लॉयर के रिक्वायर्ड स्किल्स या तो होंगे या तो फिर नहीं होंगे, ठीक है. और आप तब तक इंटरव्यू करते रहेंगे कि जब तक आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल वाले वाला बंदा मिल नहीं जाता, ठीक है. सो इट्स लाइक डूइंग द बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है, until you get a success actually, ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि X is representing the number of trials
Bernoulli trials that you need to do until you get one success. ठीक है, until you get one success. तो ये x क्या क्या वैल्यूज लेगा? x वैल्यू लेगा 1, यानी हो सकता है कि आपको पहली अटेम्प्ट पर ही सक्सेस मिल जाए. यू फ्लिप द कॉइन, आपको हेड चाहिए था, वो पहली अटेम्प्ट में मिल गया. यू इंटरव्यूड अ पर्सन, आपको पहला ही बंदा ऐसा मिल गया जो कि उन स्किल्स को कहा मिले. और इट कुड बी x, इट कांट बी 0. ठीक है, Bernoulli trial 0 नहीं है. विदाउट flipping the coin you can't get one head. You need to at least flip coin once actually. ठीक है, so maybe you need to flip the coin 2 times to get one head. 2 बार आपको coin flip करना पड़े to get one head. और 2 बार coin flip करने का क्या मतलब है to get one head? कि जो पहली बार है आपको head नहीं मिला, तभी तो आपने दूसरी बार flip किया है. Or it could be, it could take value 3 or 4 or so on and so forth. So these are the values that this random variable is going to take. ठीक है, so इस किस्म का random variable is really a geometric random variable. And अब मैं अगर मैं interested हूँ कि क्या chances हैं कि I will get success on the kth trial. In other words, वो जो पहली success है वो मुझे kth trial पर मिल जाएगी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो k-1 ट्रायल्स हैं उन तमाम k-1 ट्रायल्स पर आपको सक्सेस नहीं मिली, so you have failed actually. और जो kth ट्रायल है उस पर आपको सक्सेस मिली है. और ये सारे ट्रायल्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर these are the 1, 2, 3 and k ट्रायल्स और kth ट्रायल पर आपको सक्सेस मिल जाती है या हेड मिल जाता है या जिस भी चीज़ आप इंटरेस्टेड हैं वो मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी k-1 ट्रायल हैं इन पर आपको फेलियर मिला है. तो इन बाकी k-1 ट्रायल के फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो इट्स गोना बी 1 - p raised to k-1. ठीक है, और k ट्रायल पर सक्सेस मिलेगी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? p, यानी p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल एक्चुअली. ठीक है, so this is really the probability distribution of the geometric random variable actually. ठीक है, so अगर denote आप करना चाहें तो x is, हम कहेंगे x is geometrically distributed और इसमें जो पैरामीटर है वो पैरामीटर सिर्फ p है. Okay, so what you only need here in order to determine this expression completely is that कि एक ट्रायल में सक्सेस के चांसेस कितने. This is what that you need. So x is geometrically distributed with parameter p actually. Okay, so this is what it kind of represents. So one exercise for you is to verify that कि ये जो हमने probability distribution define की है, इस probability distribution का sum from k equal to 1 to infinity, probability of x equal to k, वो 1 है. यानी ये जो probability distribution है, this is indeed a probability distribution actually. It's a probability mass function या एक PDF. ठीक है, so this is something that you have to do it for yourself actually. So let's do an example. ठीक है, so it's pretty much straightforward, nothing too dodgy. ठीक है, so here's an example from Ross and this example is 8a. Okay, so it says that कि फर्ज कर लें आपके पास एक अर्न है कि जिसमें n जिसमें वाइट बॉल और ब्लैक बॉल्स हैं और इसमें n वाइट बॉल्स हैं और m से कैपिटल M ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, और आपने क्या करना है,
आपने इन बॉल्स इस अर्थ में हाथ डालना है और रैंडमली एक बॉल निकालनी है, और तो वो जो बॉल होगी वो वाइट होगी या ब्लैक होगी, ठीक है, या तो वो वाइट होगी या ब्लैक होगी। अब आपने उस बॉल को चेक करना है कि वो वाइट है या ब्लैक। अगर वो बॉल वाइट है, यानी अगर वो बॉल वाइट है तो आप उसे वापस डाल देंगे इस बॉक्स में और फिर एक दूसरी बॉल ड्रॉ करेंगे, और आप ये तब तक करते रहेंगे कि जब तक आपको एक ब्लैक बॉल नहीं मिल जाती, यानी until and unless you find one black ball actually, ठीक है। यानी हमने जो अपनी सक्सेस एसोसिएट की है वो एसोसिएट की है ब्लैक बॉल के साथ। तो मैं हाथ डालूंगा, बॉल निकालूंगा, अगर वाइट हुई तो वापस डाल दूंगा, वापस डालना है, रिप्लेस करना है, और फिर दोबारा हाथ डालूंगा, अगर दोबारा वाइट आई तो दोबारा वापस डाल दूंगा, फिर हाथ डालूंगा इस अर्न में और फिर एक बॉल निकालूंगा। यानी मैं तब तक करता रहूंगा कि जब तक रैंडमली सिलेक्ट करते हुए मुझे ब्लैक बॉल नहीं मिल जाती, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज। अब व्हाट यू हैव टू अज्यूम कि दोनों बॉल्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है, बोथ हैव अ सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। हमें ये मालूम करना है कि क्या चांसेस हैं कि मुझे एग्जैक्टली n बार हाथ डालना पड़ेगा इस अर्न में सो दैट आई कैन गेट अ ब्लैक बॉल एक्चुअली, ठीक है। सो एग्जैक्टली n draws are needed to get one black ball, ठीक है, ब्लैक बॉल। बी है जो कि हमें आंसर करना है, वो ये है कि जी कम से कम आपको k ड्रॉज चाहिए होंगे, ठीक है, टू गेट वन ब्लैक बॉल एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू आंसर। सो हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अब मैं इसको किस तरह समझ सकता हूँ, इसको मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि दिस इज लाइक अ बर्नौली ट्रायल एक्चुअली, ठीक है। So this is like a geometric random variable, ठीक है, कि जिसमें मैंने जो सक्सेस है वो एसोसिएट कर दी है ब्लैक बॉल के साथ, ठीक है। दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू डू। तो हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि x रैंडम वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ड्रॉज नीडेड टू गेट वन ब्लैक बॉल, ठीक है, एक ब्लैक बॉल हासिल करने के लिए जितने ड्रॉज करने पड़ेंगे x उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई कैन सी दैट x इज ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली। हो सकता है कि पहली अटेम्प्ट पर ही आपको ब्लैक बॉल मिल जाए, हो सकता है कि दूसरी अटेम्प्ट पर मिले, यानी पहली अटेम्प्ट पर ना मिले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पहली जो सिचुएशन है कि एग्जैक्टली के n आपको ड्रॉज चाहिए होंगे टू गेट अ ब्लैक बॉल, इसका मतलब ये है कि मुझे कंप्यूट करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज n। इन अदर वर्ड्स nth ट्रायल पर आपको nth ट्रायल पर आपको एक ब्लैक बॉल मिल जाएगी। और ये हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ये हम कंप्यूट कर सकते हैं 1 माइनस पी पावर n माइनस 1 टाइम्स p, जबकि p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी of having successfully black ball actually. So probability of obtaining black ball, यानी एक black ball obtain करने की probabilities, तो ये क्या होगी, black ball। This is pretty much straightforward कि जी total m balls हैं और उनमें से एक हमें मिले, यानी m choose 1 divided by n plus m choose 1, या simply m divided by n plus m। Obviously 1 minus p का क्या मतलब होगा, probability of obtaining the white ball actually, ठीक है।
So if you substitute this probability of x equal to n आप compute करना चाहते हैं तो this is going to be 1 minus p यानी 1 minus m over n plus m, ये हो जाएगा n over n plus m के ऊपर पावर n minus 1 times m over n plus m. So this is what it is going to be. ठीक है जी. Which you can simplify further. And so what would be the B part? कि जी कम से कम K draws चाहिए to get 1K balls. So इसका मतलब ये है कि you need to have the probability of X bigger than or equal to K actually. और probability X bigger than or equal to K कैसे compute करेंगे कि जी आप sum करें K equal to 0 से लेकर infinity तक probability of X equal to K. K equal to I equal to K से लेकर infinity तक और probability of X equal to I. Or if you substitute the value of the probability of x equal to I, so you're gonna get what? You're gonna get sum that goes from I equal to K to infinity, ठीक है? And it's gonna be 1 minus P के ऊपर power I minus 1 और P से मुराद यही है जो हमने पहले लिखा था times P actually, ठीक है? And now this is so this P is common in each term, so you can pull this out. अगर आप चाहें तो इस P को बाहर भी रख सकते हैं, and you're gonna get this. और 1 minus P is a number between 0 and 1 actually. तो अगर आपका so this is like a geometric series actually. This is like a geometric series. ठीक है? This is like a geometric series. और इस geometric series का sum क्या होगा? हमें पता है कि अगर आपके पास एक geometric series हो A plus AR plus AR square, so on and so forth, infinite geometric series के जिसमें R between 0 and 1 हो, तो वो होता है A over 1 minus R actually, यानी पहली term over 1 minus the ratio. So this is going to be P times पहली term जो होगी वो क्या होगी, यानी K substitute कर दें. So it's gonna be 1 minus P power K divided by 1 minus R actually. Now what is the ratio in each term? So the ratio in each term is 1 minus P. So you're gonna have 1 minus P. ठीक है? So this is, let me write it more clearly. This is going to be 1 minus P. ठीक है? So obviously 1 will get cancelled और ये P जो है इस P से cancel हो जाएगा and you're gonna get 1 minus P power K नहीं बल्कि K minus 1. ठीक है? क्योंकि पहली term क्या होगी, as we substitute K, you're gonna have K minus 1. ठीक है? So final result क्या होगा कि जी आप P की value substitute कर दें, so it's gonna be यानी 1 minus P जो है वो white ball की probability है, so you're gonna have n over n plus m के ऊपर power K minus 1. So this is what is going to be the probability of needing at least K draws or needing at least K trials, Bernoulli trials, to get one success actually. So this is what is a little bit about the geometric dynamic variable. So it can model a wide variety of things. You will find some of the interesting examples from exercises actually. ठीक है? So essence क्या है geometric distribution का, जो कि आपने समझना है वो ये कि आप बर्नौली ट्रायल्स करते रहें. देखें हाँ, ये जितनी भी distributions हम पढ़ रहे हैं इनमें खास difference है. For example
बर्नौली ट्रायल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसे आप एक बार करें और उसके दो पॉसिबल आउटकम्स। बाइनॉमियल ट्रायल क्या है या बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या है कि बर्नौली ट्रायल्स करना बट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। पॉइसन रैंडम वेरिएबल क्या है, पॉइसन एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप बर्नौली ट्रायल करें बट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत ज़्यादा बर्नौली ट्रायल्स करें और हर ट्रायल में सक्सेस के चांसेस कम। जबकि ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की क्या इंटरप्रिटेशन है कि आप बर्नौली ट्रायल्स करते रहें तब तक कि जब तक आप को एक सक्सेस नहीं मिल जाती। सो दिस इज व्हाट, सो यू हैव टू कीप द की डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज एक्चुअली। ऑब्वियसली यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि जी एक्सपेक्टेशन क्या है बर्नौली ट्रायल की, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें से k इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हर k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k के साथ। दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू डू एक्चुअली। और ऐसा करने के लिए व्हाट वी कैन डू, आई कैन से दैट दिस इज सेम एज 1 माइनस p रेज़ टू k minus 1 times p actually. You can again pull this p out of the sum and you're going to have k equal to 1 to infinity 1 minus p power k minus 1 times k. So this is what is going to be the key thing actually. Okay. You can have various different ways, some mathematically less rigorous and some mathematically more rigorous actually. Okay, so some people, you know, do what they write this expression as, you know, d by dk of d by dp of say 1 minus p raised to k actually. So you're gonna get this. Okay, and then you pull the d out of the sum. Okay, but this is not going to be mathematical rigorous because derivative को आप एक finite sum से तो बाहर ला सकते हैं, you can pull it out, but you can't pull it out of an infinite sum actually. ठीक है, तो हम क्या करना चाहेंगे, हम ये करना चाहेंगे कि किसी तरह से ये और ये इंडेक्स अगर एक जैसे हो जाएं तो फिर we can, you know, introduce a dummy index और फिर हम sum निकाल सकते हैं. So to do that, what we can do, k equal to 1 to infinity, I can do k plus 1 minus 1, or I can do k minus 1 plus 1, or 1 minus p power k minus 1 actually. And if I simplify this, and if I treat this as a one term, I would say this is going to be k equal to 1, k minus 1 times 1 minus p के ऊपर power k minus 1 to infinity plus p times of sum k equal to 1 to infinity 1 minus p के ऊपर power k minus 1. अगर आप गौर करें, this is nothing but the sum of the all values of the probabilities. यानी ये PDF का sum है, ये probability distributions का sum है. So हमें पता है कि probability distributions का जो sum है that always become 1. ठीक है, और इस टर्म में अगर हम k minus 1 को replace कर दें j से, so this term will become p times of j equal to 0 because k minus 1, k equal to 1 का मतलब है k minus 1 equal to 0 to infinity, and this is going to be j and 1 minus p की power j minus 1. ठीक है, so this is what it is going to be. ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये हम कहाँ वापस आ गए. एक और छोटी सी चीज हम कर सकते हैं इसमें कि this is equal to p times of, अब गौर करें ये सम j इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है जबकि j यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जो पहली टर्म है j इक्वल टू 0 वो तो 0 हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो इस सम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी.
So I can start this index from 1 actually. So I can do is that you start from j equal to 1 to infinity or j और 1 minus p के ऊपर पावर j minus 1 और plus 1. अब इस एक्सप्रेशन और ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसमें कोई फर्क बताइए. इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट इंडेक्स के, यहाँ k है और वहाँ j है. और ये एक्सप्रेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सो आई कैन से दैट कि आई हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू p टाइम्स ऑफ ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 1. और यहां से मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू कंप्यूट कर सकता हूं. दिस इज गोइंग टू बी व्हाट we done a little mistake. So we'll have okay. So there is okay. So there is a little डिफरेंस कि ये जो है ये हो जाएगा j, क्योंकि k जो है वो k-1 जो है वो आपने रखा है j, तो ये k-1 भी तो j होना चाहिए. अब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन जैसा बनाने के लिए यहाँ पर पावर चाहिए k-1. So what you need to do, you need to take a q outside actually and obviously p inside. ठीक है, p आप यही रखें. q से बाद है you have to pull out 1 minus p here, तभी ये यहाँ पर j minus 1 होगा. So you're gonna have 1 minus p times p and you're gonna have this. अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x और इसका कोफिशिएंट p नहीं बल्कि 1 minus p होगा. So this is what it is going to be. और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें और एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें, यानी से एक्सपेक्टेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैंसिल हो जाएगा. यू कैन हैव माइनस p टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जो कि आप इस तरफ ला सकते हैं. एंड सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x. ठीक है, यानी अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इसकी इंटरप्रिटेशन होगी कि जी कितने ऑन एवरेज आपको कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे टू गेट एटलीस्ट 1 सक्सेस. वो डिपेंड करता है कि ये p कितना बड़ा है. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर ये p जितना बड़ा होता जाएगा, बिकॉज इट्स अ नंबर बिटवीन 0 and 1, तो ये नंबर उतना छोटा होता जाएगा. और p जितना छोटा होता जाएगा, दिस नंबर इज गोइंग टू गेट बिग एक्चुअली. इन अदर वर्ड्स, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं तो आपको जल्दी ऑन एवरेज सक्सेस मिल जाएगी. just intuitive actually. और अगर आपके एक ट्रायल में सक्सेस के चांसेस यानी p की वैल्यू कम है तो ऑन एवरेज आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा to get 1 success actually. So this is what the interpretation of it is. वेरिएंस के लिए आप खुद एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिएगा. ठीक है, it's given in book and it turns out that this is equal to 1 minus p over p square. So this is also a kind of an exercise for you is actually. ठीक है, तो ये आप ये खुद कीजिए. So this was what do we call the geometric distribution. We can take the same kind of an experiment to a new level actually. हम ये कह सकते हैं कि जी एम्प्लॉयर को जो इंटरव्यूज कर रहा है एक खास स्किल्स वाले एक किसी बंदे को हासिल करने के लिए उसे इस जैसा एक बंदा नहीं चाहिए बल्कि 10 बंदे चाहिए. यानी वो तब तक इंटरव्यू करता रहेगा जब तक उसको 2 या 4 या 5 या 8 या 10 लोग ऐसे नहीं मिल जाते
कि जो कि उसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल नहीं मिल जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट टीचिंग पोजीशंस ऑफर करती रहती हैं कि जी हमें 2 मैथमेटिक्स के लेक्चरर्स चाहिए या 2 मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए। तो वो कब तक ये इंटरव्यूज़ करते रहेंगे? तब तक करते रहेंगे कि जब तक उनको वो 2 प्रोफेसर्स नहीं मिल जाते।